Hello, my dear students. I am Dr. Veenadhari, Associate Professor from Ravindranath Tagore University. So today we are going to discuss about the dynamic interconnection networks and instruction set architecture. In previous class, we discussed different interconnection networks. Those are direct interconnection networks and indirect interconnection networks. Direct interconnection networks are static interconnection networks. So I explained different static interconnection networks, what is node degree, what is diameter, bisection width, and the number of links. Those are some important terminology which we need to know about the static interconnection architecture. So in that regarding static interconnection architecture, we studied different like linear array, tree, and mesh and ring. For those interconnection networks, we studied different parameters like node degree, diameter, and bisection bandwidth. Okay, and today we are dealing with the dynamic interconnection networks. So those are indirect interconnection networks. So today's lecture objectives, after this lecture you definitely able to know different dynamic interconnection networks and able to define good instruction set architecture characteristics and able to clearly differentiate RISC and CISC architecture. So these are the lecture objectives. Dynamic interconnection networks. This is a very important network. Connection in a dynamic network are established on the fly as needed. So it will not be established before execution of the program. Dynamic network will be established according to the user program requirement. Okay, so dynamic networks can be classified based on the interconnection scheme. Basically these divided bus based versus switch based. Okay, again bus based will be differentiated into single bus and multiple bus. Switch can be classified as single stage, multi stage, and cross bus stage. So dynamic communication internet interconnection networks communication patterns are based on program demands. Okay, so these connections are established on the fly during program execution. It is dynamically established, not statically, not permanently, according to the need and programmer according to the situation. Those connections will be established. So here the bus based already we have seen that is single and multiple buses will be there. So the basic we don't know about the switch based interconnection networks. So in this type of network, connections among processors and memory modules are made using simple switches. So these connections will be established using switches. Three basic interconnection topologies are existing. The first switch-based network is crossbar network, and single stage switching network, and multi-stage switching network. So switching network will be broadly classified into three categories: crossbar, single stage, and multi-stage. So first network is crossbar network. In electronics, a crossbar switch is a switch connecting multiple inputs to multiple outputs in a matrix manner. Okay, आप मैट्रिक्स को जानते हैं ना, टू डायमेंशनल मैट्रिक्स कैसे होते हैं. सो लाइक दैट इट विल बी मैट्रिक्स की मैनर पे, मतलब एक साइड आपका प्रोसेसर्स होता है, एक साइड मेमोरीज होता है. सो इसको क्रॉस बार यूजिंग स्विचेस इट विल बी कनेक्टेड. सपोज यहाँ पर ईच मेमोरी मॉड्यूल कैन सेटिस्फाई ओनली वन प्रोसेसर एट ए टाइम, है ना. एक प्रोसेसर एक मॉड्यूल को ही एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं एक प्रोसेसर एक टाइम में दो तीन मतलब मॉड्यूल्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं. सो यहाँ पर हियर यू प्लीज लुक एट द 8x8 क्रॉस बार नेटवर्क, मतलब एस्टेब्लिश कैसे हो सकते हैं.
So see, these are the central processing units and these are the memories. So 0 to 7 here, that is total 8 networks matlab here established, and each will be connected with the crossbar switch. It is a crossbar switch, like the connections are established here. So here we can establish like a horizontal establishment or vertical, yeah, diagonally also it can be established. The connections will be established. So here if it is matlab closed, the cross point switch is closed means it will be matlab symbolized like this. Otherwise it will be symbolized like this. It will look like it is open means you can access this. It will be symbolized like this. You can look at access this. This is a switch is open and this switch is closed. And each memory module matlab each processor can access at a time one memory module. After that one processor can access any memory module at any time, but only at a time one module only it can access. So this is basically about the crossbar switching network. Okay, so multi-stage interconnection networks, crossbar, after crossbar networking, that is switching network, that is multi-stage and single stage switching networks. Okay, so the most undesirable disadvantage in that is limitation in multi-stage bus limitation is, if you want to establish the connection between two ports, there is only one option है ना. बस के बीच में आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है तो एक ही ऑप्शन होता है. सो हियर मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स, यहाँ पर उस लिमिटेशन को अपन ओवरकम कर सकते हैं. सो मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क है ना, इट विल प्रोवाइड ए नंबर ऑफ साइमल्टेनियस पाथ्स बिटवीन द प्रोसेसर्स एंड द मेमोरी मॉड्यूल्स. सो मतलब द लिमिटेशन ऑफ द बस को, सिंगल बस या मल्टीपल बस, एक मतलब सिंगल बस पे उसको अवॉइड करने के लिए, so in multi-stage interconnection networks there are there are so many simultaneous paths between the processors and the memory modules we can establish, है ना. So here एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, that is ओमेगा नेटवर्क. if you want to see एक मतलब 2x3, यहाँ पर तो 2x2 नेटवर्क स्टेज बाद में बता दूंगी मैं. यहाँ पर इंटर स्टेज कनेक्शन कैसे होगा. सो यहाँ पर एक एग्जांपल है, दैट इज मेमोरी मतलब 3 स्टेज मल्टी मतलब नेटवर्क. फर्स्ट आर्किटेक्चर, फर्स्ट स्टेज आर्किटेक्चर, सेकंड स्टेज आर्किटेक्चर एंड थर्ड स्टेज आर्किटेक्चर. ओके, so this is a omega network. It is called 3 stage omega network. 3 stage because it is how many CPUs are there, total 8 CPUs are there, 8 memories are there. Okay, so इसीलिए 2 to the power of 3, so it will be having 3 stages. Suppose यहाँ पर 16 CPUs and 16 memories available, memory modules available है तो so 2 to the power of 4 stages we need to establish. Okay, so यहाँ पर 3 है इसलिए 3 stage का मतलब नेटवर्क है. सो मल्टीपल पाथ्स ऑलरेडी बता चुकी थी. देखिए यहाँ पर कैसे एस्टैब्लिश हो सकता है. सबसे पहले फर्स्ट 0 0 0 एंड 1 1 1 है ना, ये अपने पास मतलब ऐसे ही एस्टैब्लिश हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन होता है. ओके, एंड फर्स्ट वाला क्या मतलब इसके बाद वाला मतलब 0 0 के बाद क्या होगा, ये इट विल कनेक्टेड टू द सेकंड वन, है ना. कितने मतलब यहाँ पर अपन को है, यहाँ पर 3 स्टेज मतलब एक एक इसके लिए 2 इनपुट्स मतलब 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स होगा. इसलिए यहाँ पर एक एक इंटरकनेक्शन आर्किटेक्चर पे अपन क्या मतलब यहाँ ले सकते हैं. फर्स्ट स्टेज पे, हर स्टेज पे 4 मतलब आपको स्विचेस मतलब ये लेना पड़ेगा. हर एक स्विच के लिए मतलब 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स होगा. सो यहाँ पर टोटल 8 है ना, इसीलिए यहाँ पर 4 इंटरकनेक्शन वाला मतलब ये स्विचेस को लेना पड़ेगा. सो फर्स्ट यहाँ पर कनेक्ट हो गया. ओके, सो नेक्स्ट क्या होगा, इट विल बी कनेक्टेड विद द सेकंड, है ना. सेकंड विल बी कनेक्टेड विद यहाँ पर, है ना, सेकंड को कनेक्ट हो जाएगा मतलब यहाँ का सेकंड. एंड थर्ड विल बी कनेक्टेड टू थर्ड स्विच को, एंड फोर्थ विल बी कनेक्टेड टू फोर्थ स्विच. बट यहाँ पर मैंने ये बता दिया, यहाँ पर एक स्विच को 2 इनपुट्स चाहिए. सो इसीलिए आफ्टर मतलब 4 स्विचेस होने के बाद ये फिफ्थ स्विच कहाँ कनेक्ट हो गया, फर्स्ट अगेन, है ना. फर्स्ट की मतलब सेकंड इनपुट जैसा कनेक्ट हो गया, एंड सिक्स्थ सेकंड की सेकंड, एंड यहाँ पर
ये थर्ड की मतलब थर्ड वाला मतलब सेकंड इनपुट, एंड यहाँ पर लास्ट यहाँ पर इसकी सेकंड इनपुट हो गया. सो लाइक दैट इट विल बी कनेक्टेड लाइक दिस. ओके, सो 0 यहाँ गया मतलब 1 यहाँ आ गया, एंड 1 0 मतलब 2 यहाँ आ गया है ना. आखिरी में अपन देखेंगे 2 मतलब 2 आ रहे नहीं आ रहे. सो देखिएगा फिर अगेन ये यहाँ आ गया, ये फर्स्ट का मतलब यहाँ पर सेकंड है, ये सेकंड यहाँ पर कनेक्ट होगा. ओके, एंड थर्ड यहाँ पर कनेक्ट हो गया, इसकी फोर्थ यहाँ पर कनेक्ट हो गया, एंड फोर्थ यहाँ पर कनेक्ट होने के बाद ये फर्स्ट यहाँ कनेक्ट हो गया, सेकंड यहाँ कनेक्ट हो गया, थर्ड यहाँ कनेक्ट हो गया, एंड फोर्थ यहाँ कनेक्ट हो गया. अभी बचा क्या है, मतलब ये दोनों कनेक्शंस हो गया. अब यहाँ से शुरुआत करेंगे, ये यहाँ पर सेकंड इनपुट हो गया, ये यहाँ पर सेकंड इनपुट हो गया, एंड यहाँ पर सेकंड इनपुट हो गया, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये यहाँ पर सेकंड इनपुट हो गया. ओके, सो एट लास्ट मतलब आपको फर्स्ट इनपुट यहाँ पर कनेक्ट करना है, एंड सेकंड को सेकंड स्विच को कनेक्ट करना है, थर्ड को मतलब यहाँ थर्ड पे, एंड फोर्थ को यहाँ पर, फिफ्थ को फिर अगेन यहाँ का सेकंड, यहाँ का सेकंड, यहाँ का सेकंड, यहाँ का सेकंड. देखिए आप 0 0 0 यहाँ पर 0 0 0 के कनेक्ट हो गया, एंड 0 0 1 कहाँ कनेक्ट हो गया देखिएगा, 0 0 1 यहाँ पर गया, सो यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, सो यहाँ से यहाँ आ गया. अगेन इट इज कनेक्टेड टू 0 0 1 ओनली. ओके, 0 1 0. सो देखिए 1 0 इसकी कनेक्शन कहाँ आ गया, अगेन इट विल बी कनेक्टेड टू 0 1 0 ओनली. सो यूजिंग दिस मतलब 3 स्टेज वाला नेटवर्क है, तो 4 स्टेज है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 16 होगा, यहाँ पर कितनी होगा, सो 8 इनपुट्स है ना, 8 को एक एक में 2 2 है 16 है ना, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, एंड फोर्थ स्टेज आल्सो इट विल कम. सो लाइक दैट यहाँ मतलब अपन कैसे कनेक्शंस किया वैसे ही वहां पर कनेक्शंस करना है. ओके, so this is called the omega switching network. यहाँ पर multiple options we are having. मतलब एक यहाँ से मतलब डेटा मतलब ट्रांसफर करना है, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक, ऐसा मल्टीपल पास पे. आखिरी में अपन को कनेक्ट तो वही हो रहा है मेमोरी मॉड्यूल उसी पे, बट इन बिटवीन इट विल बी स्टेजेस पे मतलब डेटा ट्रांसफर हो रहे. दिस इज वन ऑफ द मल्टी स्टेज नेटवर्क का एग्जाम्पल है. एक क्रॉस बार हो गया एंड हो गया. सो ये मैंने एक मतलब सिंगल स्टेज सपोज ये मतलब 2x2 स्विच मैंने बता दिया. इस पे क्या होगा, एक मतलब इट विल बी कंटेनिंग द मॉड्यूल एड्रेस ऑपरेशन कोड एंड क्या वैल्यू को कैरी करना है, मतलब ये होगा. सो मॉड्यूल टेल्स विच मेमोरी टू यूज, एड्रेस स्पेसिफाइज द एड्रेस है ना विच इन मॉड्यूल, यूज द ऑपरेशन सच एज रीड करना है और राइट. वैल्यू में कंटेन द ऑपरेंड सच एज ए 32-bit वर्ड टू बी रिटन ऑन ए राइट है ना. अगर राइट ऑपरेशन है तो कौन सा राइट ऑपरेशन, अगर रीड ऑपरेशन है तो कौन सा है. ये वैल्यू मतलब अगर रिटर्न ऑपरेशन है तो देन ओनली इट विल बी हैविंग द वैल्यू, रीड है तो इट विल फेच द वैल्यू. ओके, दिस इज so this is the single stage wala, that is multi stage. So here from the straight it is matlab these are the different possible settings and एक straight, and this is exchange like, and this is upper broadcast है ना यहाँ पर, and this is lower broadcast है ना. सपोज इसको बंद करके ओनली अपर मतलब इसको बंद करके अपर ब्रॉडकास्ट, यहाँ पर लोअर ब्रॉडकास्ट है ना. सो दीज आर द डिफरेंट पॉसिबल मतलब साइमल्टेनियस ऑप्शंस आर देयर इफ यू आर यूजिंग द स्विचिंग नेटवर्क है ना. लाइक बस जैसा मतलब अपन को एक ही स्ट्रेट वाला नहीं है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल इन दिस मतलब मल्टी स्टेज मतलब स्विचिंग नेटवर्क्स. ओके, so this is the advantage of this. Okay, so overall the summary is dynamic interconnection networks are modern networks where complexity is also high and speed is also हाई है ना. स्पीड को इम्प्रूव करना है तो कॉम्प्लेक्सिटी भी हाई है. कुछ कॉम्प्लेक्सिटी मतलब स्विचिंग या क्रॉस बार किसी में मतलब बटरफ्लाई, कुछ नेटवर्क्स में ज्यादा है, कुछ नेटवर्क्स में मॉडरेट है. ओवरऑल स्पीड आल्सो हाई एंड कॉम्प्लेक्सिटी आल्सो है. So this is the dynamic interconnection network architecture, so which we discussed crossbar, single stage and multi-stage switching networks. So we did not discuss about the bus. Bus is a single matlab connection element, multiple and single bus. Just you research about it. Okay, so these are the dynamic interconnection network architecture. So now we are moving into the next topic, that is instruction set architecture.
so which is very important in advanced computer architecture. Okay, so देखिए मतलब कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, है ना. अपना इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर मतलब इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर विल बी कमिंग अंडर द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर. बट तो यहाँ पर देखिएगा हार्डवेयर, है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर इतना मतलब नाचना है तो हार्डवेयर उसके नीचे उसको देखना पड़ेगा. सो है ना, दिस इज द मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ द हार्डवेयर टू डिजाइन एनी इंस्ट्रक्शन सेट. मतलब टू डिजाइन एनी इंस्ट्रक्शन सेट इट शुड बी बेस्ड ऑन हार्डवेयर ओनली. मतलब दोज इंस्ट्रक्शन सेट शुड बी बेस्ड ऑन द हार्डवेयर ओनली. द स्पीड एंड परफॉर्मेंस एंड measure it will be depending on the hardware only. Okay, that is the relation between this hardware and the software, है ना. इन बीच में इंस्ट्रक्शन सेट है, मतलब इसके ऊपर अपना हार्डवेयर मतलब सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाएगा. ये बीच की पार्ट है, ये हार्डवेयर है. ओके, देखिए. So instruction set architecture is a part of computer architecture. So it includes which type of data types, instructions, what are the different registers, addressing modes, and memory architecture, interrupts, exception handling. These are all included in instruction set architecture. Like already in CSO you studied like a program counter. What is the work of program counter? So temporary register, what are the different registers, and move, what is the matlab like instructions, move, add, increment, and these are like instructions. And it also specifies the set of up codes. Like kabhi aap log microprocessor mein पढ़ रहे होगा, mnemonic codes, up codes, operation codes क्या होता है, उसका mnemonic code क्या होता है, and native commands implemented by a particular processor. These are the part of instruction architecture. So what are the data types, addressing modes क्या use कर रहे हैं, क्या क्या interrupts available है, memory किस type का है, किस type का instruction है, उसकी length कितना है instruction format की, whether it can support the 32-bit या it can support the 62-bit operating system. Like that it will be discussed in this instruction set architecture. So these are the well-known instruction set architectures developed in like Intel का है x86 instruction architecture. It is from Intel family. 8086 CPU, मतलब आप लोग अभी माइक्रोप्रोसेसर में पढ़ रहे होगा 8086 माइक्रोप्रोसेसर. ये सब in 1978. It is Intel family. It is also followed by AMD. है ना. AMD क्या है? AMD also a one processor developed company है. That is advanced micro devices, है ना. 50 years back ये है. ये graphics and processors को design करती है. मतलब ये US based company है, multinational company है. So it is also followed, है ना. So ये 32 bit नहीं, ये x86 64 bit का extensions भी है, proposed by this AMD and followed by Intel, है ना. This is the famous instruction set architecture x86. Okay, and this ARM 32-bit and 64-bit. ARM means advanced RISC machine है. So ये भी मतलब initially it is by मतलब इसको पहले कहते थे एक्रोन रिस्क मशीन. इसके बाद ये एडवांस्ड रिस्क मशीन हो गया था. मतलब ये वेल नोन आर्किटेक्चर मतलब इंस्ट्रक्शन सेट है. एंड मिप्स आल्सो, मिप्स मींस 32 दोस दैट मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड नहीं है यहाँ पर. 32 बिट एंड 64 बिट. दिस इज आल्सो वेल नोन बाय माइक्रोप्रोसेसर विदाउट इंटरलॉक्ड पाइपलाइन स्टेजेस, है ना. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिप्स टेक्नोलॉजीज, है ना. सो इसका भी मतलब 32 बिट एंड 64 बिट का मतलब आर्किटेक्चर फेमस है. सो बेसिकली ये सिस्क को फॉलो करती है, ये रिस्क को फॉलो करती है. मतलब मिप्स आल्सो विल बी फॉलोड, रिस्क एंड सिस्क दोनों को फॉलो करेंगे. मतलब x86 एंड ARM मतलब वी विल डिस्कस मतलब क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, बिकॉज एक सिस्क है एक रिस्क है इसीलिए. सो देयर द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड सिस्क कॉन्सेप्ट विल कम. So in later slides we will discuss the difference between the RISC and CISC है. Okay, so these मतलब instruction x86 architecture का क्या मतलब instruction set का क्या speciality है, ARM का क्या speciality है.
Okay, x86 is a generic name given to Intel processors beginning with the 8086 processor released in 1978. Okay, since the earliest machines were programmed in assembly language and memory was slow and expensive. Okay, so the CISC was implemented in computers है ना 80s में, early 80s में मतलब ये CISC को implement किया था, मतलब इसको मतलब एक्सपेंस मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसको स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए. सो इंटेल x6 यूजेस द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एंड आर चिप्स दैट आर इजी टू प्रोग्राम एंड व्हिच मेक एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी, है ना. इसी की बेसिस पे मतलब ये वाला x86 को लेकर आ गया था. सो ARM was first known as Acron RISC machine, I already told, but now it's known as advanced RISC machine. This architecture है ना, this ARM was developed in the late 70s and 80s. Okay, and this RISC architecture utilizes a small highly optimized set of instructions rather than a more specialized set of instructions often found in other type of architectures. Okay, so this is a specialized मतलब instructions है. यहाँ पर तो small मतलब instructions are used है ना, यहाँ पर मतलब स्पेशलाइज इंस्ट्रक्शंस ऐसा ये पर्टिकुलर इसके लिए ये है ऐसा कुछ नहीं है, है ना. सो दिस इज द ARM का है, ये इंटेल x86 मतलब दोनों लगभग आपको 70s एंड 80s में मतलब विद एडवांस, पहले तो 70s में एक्रॉन रिस्क मशीन आ गया, फिर एडवांस्ड वाला 80s में आ गया. सो दोनों लगभग उसी टाइम पे सेम उस टाइम पे आ गया था. So Intel x86 CISC processor is a x86, it is a 16 and 32 bit है ना, दोनों के प्रोसेसर्स है. It has a limited number of registers ज्यादा नहीं है, but इसका स्पेशलिटी ये है लोड एंड स्टोर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, है ना. मतलब लोड के लिए एक इंस्ट्रक्शन, स्टोर के लिए एक और इंस्ट्रक्शन, मतलब ऐसा कुछ नहीं, दोनों एक ही जगह पर मतलब इनकॉर्पोरेट हो गया. इट हैज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस. ओके, बट एफिशिएंसी व्हेन कंपेयर्ड टू ARM इज लेस, है ना. मतलब ARM ही ज्यादा एफिशिएंट है, ये थोड़ा सा लेस एफिशिएंट है. सो डिफरेंट मशीन प्रोग्राम्स कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन CISC मतलब मशीन, है ना. सो बट ARM इज ए 32 मतलब दोनों लेटेस्ट स्टेज पे 64 बिट पे भी आ गया. इट इज अभी तो वो 16 एंड 32 मतलब यहाँ पर क्या 32 बिट ये रिस्क बेटा, रिस्क नहीं है ना, ये रिस्क प्रोसेसर है. इट हैज ए हाई कोड डेंसिटी, मतलब कोड यहाँ पर ज्यादा होगा, मतलब डेंसिटी मीन्स एक मतलब छोटा सा मतलब लिखने के लिए भी प्रोग्रामिंग मतलब ज्यादा करना पड़ेगा, यहाँ पर ज्यादा इंस्ट्रक्शंस होगा. लोड अलग है, स्टोर अलग आर्किटेक्चर है. यहाँ पर 32 बिट लेने के बाद है ना, वहां पर 16 बिट एंड 32 बिट अलग अलग है. यहाँ पर 16 बिट थंब इंस्ट्रक्शंस है. सो थंब इंस्ट्रक्शन इज द रिस्क का स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है माइक्रो, ये 16 बिट, बट इट इज a subset of the 32 bit process मतलब instruction set की, and it will act जैसे 32 bit जैसा act करेगा, even though it is a 16 bit it will act जैसे 32 bit, है ना. uses simple instructions, it is conditional execution and inline barrel shifter, है ना. barrel shifter इसका काम क्या है, shifting and rotation का काम करना है, तो 32 bit का barrel shifter मतलब it will be using RISC processor, it will shift and rotate the complex instructions very easily. ये भी यहाँ पर अवेलेबल है, ये यहाँ पर, इसलिए ARM का मतलब एफिशिएंसी थोड़ा रिस्क के CISC की कंपैरिजन में ज्यादा है. ओके, सो दिस इज द ARM रिस्क प्रोसेसर. ओके, सो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल इफ आई एम सेइंग दैट इज मेन मेमोरी एंड दीज आर द रजिस्टर्स एंड ओके. सो यहाँ पर ये मतलब आपको करना है टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना. सो डेटा 1 है 2 3 एंड 5 2. सो इंटेल 86 में x86 में मतलब सिंपली आप ऐसा लिख लो मल्ट 2 3 एंड 5 2 इजी है ना. सो ऐसा लिखो, बट रिस्क में वैसा नहीं लिख सकते. मतलब यहाँ पर लोड पहले A में 2 3 मतलब ये डेटा को लोड करो, लोड रजिस्टर B में 1 हो, मतलब मल्टीप्लाई मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर स्टोर करो 2 3 मतलब ये मतलब एक बार प्रोडक्ट को मतलब लोड करने के बाद मतलब पहले, इसके बाद मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई पे ये पे मतलब ये स्टोर कर दीजिएगा, इसकी जगह पर ये मतलब ये स्टोर कर दीजिए. सो यहाँ पर 4 इंस्ट्रक्शंस हो गया, यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन में काम चल गया था. ओके,
बट देखने में तो सिस्क बहुत इजी है, इसलिए तो सिस्क आ गया था इम्प्लीमेंट करने के लिए। रिस्क पे बहुत इंस्ट्रक्शंस, इसलिए हेवी डेंसिटी बताया मैंने, कोडिंग का हेवी डेंसिटी है यहाँ पर। So if any one of the operands need to be used, मतलब Intel x86 का ये है, मतलब that was अभी मैंने ये बता दिया, this was the basic difference between these two, and some more differences are if any one operand need to be used for another computation, the processors must reload the data from memory into the register, है ना। एक बार उसका काम हो गया, मतलब दूसरा अभी कंप्यूटेशन के लिए करना है तो मतलब दोबारा इट शुड बी रीलोडेड, है ना, मतलब एक बार मतलब हो गया तो इसको नहीं चलेगा। The length of the code is relatively very short, ये already देख चुके। Very little RAM is required to store the instructions because इंस्ट्रक्शन की लेंथ बहुत कम है, इसीलिए रैम वेरी लिटिल इट इज यूज्ड। इट रिक्वायर्स मोर ट्रांजिस्टर्स, मोर हार्डवेयर स्पेस, देयरफॉर पावर कंजम्पशन इज मोर। ओके, सो यहाँ पर लॉजिक मतलब आपको मोर ट्रांजिस्टर्स, मोर हार्डवेयर स्पेस, इसका मतलब जरूरत है इंटेल ये सिस्क वाला, इसीलिए इट इज पावर कंजम्पशन ज्यादा है। ओके, फिर कमिंग टू द ARM RISC machine, if architecture operand will remain in the register until another value is loaded in its place, मतलब उसको रिमूव नहीं होगा, मतलब एक बार यूज होने के बाद दोबारा भी यूज करना चाहते तो यू कैन यूज इट। ओके, एंड मोर नंबर ऑफ कोड लाइंस, है ना, ऑलरेडी बता जो कितनी शॉर्ट कोड नहीं है, सो रैम इसलिए ज्यादा यूज करना पड़ेगा, कोड ज्यादा है, बट इट रिक्वायर्स लेस ट्रांजिस्टर, सो लेस हार्डवेयर स्पेस, देयरफॉर पावर कंजम्पशन इज लेस है यहाँ पर, मतलब यहाँ पावर कंजम्पशन ज्यादा है, पावर कंजम्पशन यहाँ कम है। रैम मतलब यहाँ यूज होता है, मतलब यहाँ पर लिटिल रैम है। ओके, ज्यादा कोड होता है, वहां पर कम लोड होता है ना यहाँ पर। दीज आर द बेसिक मतलब डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। So the following equation, you know, मैं ऑलरेडी मतलब आप लोग को बता चुकी थी, if you want to compute the time of an any मतलब इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब टाइम है, उसको एक इंस्ट्रक्शन कितनी साइकिल्स लगेगा, टोटल इंस्ट्रक्शंस कितना है, वैसे अपन इसको मतलब कैलकुलेट करेंगे, है ना। सो इंटेल x86 में मतलब इट इज मिनिमाइज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम, है ना, इंस्ट्रक्शंस तो कम होगा बट टेक्स मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स टू एग्जीक्यूट द एंटायर प्रोग्राम, है ना। सो साइकिल्स ज्यादा लगेगा, सो टाइम बराबर हो रहा है ना। मिनिमाइज द क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन बट हैज मोर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ज्यादा इंस्ट्रक्शंस है बट साइकिल्स कम है, सो लगभग दोनों का मतलब एफिशिएंसी इसी का ज्यादा है बट लगभग सेम, मतलब ये दोनों का वैसे ही मतलब टाइम कंज्यूमिंग पे मतलब इतना फर्क नहीं आ रहा, इसलिए बाद में सिस्क विल बी रिप्लेस्ड बाय मतलब रिस्क से मतलब हो रहे आजकल तो यहाँ पर। So more emphasis on speed and performance than power consumption. It compatible with most of the operating systems like Windows 7, XP, Linux, मतलब Linux, Android, Vista, मतलब ये सब में ये यूज होता है। Intel x86 is used in laptops, desktops, and servers, है ना। ARM focuses mainly on low power consumption. Linux and Android को support करेंगे. It uses small smartphones, iPads, tablets, etc. But ये स्लाइड मतलब ये इसके अलावा आजकल की विंडोज 8 में भी आपको मतलब ये ARM है ना, इट इज कॉम्पिटिंग विद दिस लैपटॉप्स आल्सो, लैपटॉप्स में भी विंडोज 8 में ARM रिस्क को यूज किया गया था कुछ लैपटॉप्स में भी, मतलब ये वाला ARM इट इज कम्पीटिंग विद, मतलब यहाँ पर भी यूज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लो पावर कंजम्पशन, लैपटॉप्स में भी आने लगे आजकल ये ARM वाला। ओके, so anyway, two instruction set architectures we have compared and we have learned so many things about the instruction set architecture. So see here, a good instruction set architecture lasts through many implementations, that is portability and compatibility भी होना चाहिए आपने डिजाइन किया तो, used in many different ways, है ना, मतलब लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, सर्वर्स, मतलब सभी का मतलब डिफरेंट वेज में यूज कर सकते, provides convenient functions to higher level and permit efficient implementation at lower level. So this is the good instruction set architecture का कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, पोर्टेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, डिफरेंट वेज में यूज होने का, स्केलेबिलिटी भी होना चाहिए, इट शुड बी वर्क एज वेल एज इन लोअर लेवल एंड हायर लेवल में भी, ये गुड एफिशिएंट वे में मतलब फंक्शंस को एफिशिएंट वे में होना चाहिए, कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट होना चाहिए एट लोअर लेवल एंड हायर लेवल। ओके, सो और भी है क्लास में रिस्क एंड सिस्क के डिफरेंशिएशंस,
but it won't complete in this less time, है ना? So I'm stopping here. So today we learned about the different dynamic and interconnection networks and good instruction architecture का क्या characteristics है and क्या क्या famous architectures क्या है, Intel x86 उसकी मतलब आर्किटेक्चर क्या है एंड ARM की आर्किटेक्चर क्या है, एंड दोनों के कंपैरिजंस देख चुके थे. एंड दिस इज अ वेरी important function which we got, है ना?